पता अब तक नहीं बदला हमारा, पता अब तक नहीं बदला हमारा, वही घर है वही किस्सा हमारा। थक चुके हैं हम मेहमान की तरह घर आते आते, बेघर हो गए हम चंद रुपए कमाते कमाते। दोस्तों, समय आ गया है कि हम सब एक थोड़ी सी मुशक्कत और ड्यू डिलिजेंस से अपना जो ये किस्सा है वो बदले। हम सबके पास एक छोटा सा या बड़ा सा या जैसा भी हम घर चाहते हैं वो घर हो। वी शुड हैव एक्सेस टू द राइट एडवाइस किसी भी फाइनेंशियल डील करने से पहले, ताकि हम अपनी मेहनत से कमाई हुई जो पैसे हैं उनको ना गंवाएं। Good evening, everyone. I am Colonel Manish Kochhar, retired from Army and your host for the Value Talks today. मैंने अपनी जिंदगी में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा इनफैक्ट, जिसने जिंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी फाइनेंशियल डील में पैसे ना गंवाए हों। चाहे वो प्रॉपर्टी हो, म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक मार्केट हो, डेरिवेटिव्स, इंश्योरेंस हो, स्टार्टअप, क्रिप्टो, हर आदमी ने किसी ना किसी फील्ड में, फाइनेंशियल डील में जो है पैसे गंवाए हैं। हाउस बनाते वक्त, कंस्ट्रक्शन के टाइम पे। और डिस्क्लेमर ये है कि मैंने ऑलमोस्ट इन सभी चीजों में कभी ना कभी पैसे गंवाए हैं किसी ना किसी डील में, एंड ओवर द years I have learned from experience. And that is one of the reasons of starting these value talks, so that people don't commit the mistakes we have committed. इन सब फील्ड्स में एजेंट्स एंड ब्रोकर्स आर सच डोमिनेटिंग प्लेयर्स कि आम आदमी कभी ना कभी कुछ खराब लोगों के चंगुल में फंस ही जाते हैं। Through value talks, it's our sincere endeavor to bring on board experts in these fields and devise a method of due diligence and checklist जो हमको पता होनी चाहिए, ताकि लोग अपनी मेहनत की कमाई जो है वो ना गंवाएं। And at the same time, we intend to provide a platform, a forum wherein आप सब लोग जो है अपने सवाल जो है वो बेझिझक पूछ सकें, और उन सवालों के जवाब ढूंढने की जो जिम्मेदारी है वो वैल्यू टॉक टीम्स की रहेगी। We will keep interacting with you all and take your feedback time to time through our WhatsApp group और Telegram channel. Telegram channel का लिंक जो है वो हमारे चैट बॉक्स में है। And we will also be uploading these webinar videos on the YouTube channel, which will ultimately become a repository of valuable information, जिससे आपको पक्का कुछ ना कुछ फायदा होगा। आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यदि नहीं ज्वाइन करते तब भी वी रिस्पेक्ट योर डिसीजन। इन लाइन विद द स्टेटेड इंटेंट ऑफ वैल्यू टॉक्स, आज हमारे साथ हैं हमारे पहले एक्सपर्ट कैप्टन विपुल चौधरी, जो कि एक एक्सपर्ट है रियल एस्टेट फील्ड में, और इनके हिसाब से कुछ ऐसी कॉमन गलतियां हैं जो कि करीबन 90% लोग करते हैं अपना घर खरीदने से पहले, और जो कि अगर अवॉइड की जा सके तो उनको नुकसान होने से कुछ फायदा हो, कुछ वो बच सकते हैं और कुछ फायदा भी हो सकता है। So he will be educating us on the same. Before we move on, let me share with you the very impressive profile of Vipul. Captain Vipul Choudhary has served in the army for 5 years in the Gurkha regiment. Thereafter, he did his MBA finance full-time from MDI Gurgaon, and he is also a law graduate. उनको 22 साल से ज़्यादा का अनुभव है, जिसमें से कि 15 साल से ज़्यादा जो है वो फाइनेंस एंड रियल एस्टेट फील्ड में है। He has also worked for American Express Bank, and he has super vast experience of handling more than 1200 plus real estate deals across the length and breadth of the nation, especially in National Capital Region, Delhi, Gurgaon, Noida, Ghaziabad, Meerut, Neemrana, Dharuhera, then Bangalore, Chennai, Indore, Mau, Chandigarh, Jaipur. My list is endless, and he has worked with almost all builders of repute. His personal expertise is in negotiation of complex deals, buyer due diligence, and seller representation. Hi, Vipul. Welcome to the show. Sir, good evening. Good evening. Vipul, before we start, इसको आप वार्निंग की तरह ले लें, सलाह की तरह ले लें, सर, लेकिन
we have an experienced audience here, and Sir. as your host who has had some real bad experiences in the real estate sector, Sir. so you have a choice not to enter the ring, and just share the PPT if you are carrying any. I will just Yes, share it sir, with the webinar, and we foreclose the webinar here only. Or you have an option that you brace yourself for the tough questions. And by the way, जो suggested questions जो आपने मुझे भेजे थे, they found their way to the dustbin. उनमें से मैंने सिर्फ 2 questions रखे हैं because I found them relevant. So what do you opt for? You ठीक opt है to stay? करते हैं सर शुरू. Okay, great. Should I keep the I mean this headset या मैं हटा के बात करूं सर? नहीं, आपकी आवाज आ रही है, आप बहुत स्मार्ट दिख रहे हैं, बिल्कुल ठीक ठाक है. ठीक है सर. Okay. So now that you have been gracious enough to accept the challenge, I would request you first to tell us about Olive Green Consultants very briefly, and in the meanwhile, I would warm up my grill and roaster for you. Sir, Olive Green Consultants was started by me in the year 2010. After having worked with a startup in 2009, I started this on my own. I started with real estate, then धीरे-धीरे हम और लोगों को इसमें. People be little louder. Sir, I started with real estate, and then slowly over a period of time, increased the portfolio of services and products we offer to our clients. So real estate is my personal specialty. Then there are others with us. Jitendra is there. He helps with mutual funds. Colonel Birat Sai is into civil construction. Our chartered accountant is there, Ashish. He is also empaneled with AGIF. We have an architect with us, an advocate, home loan specialist, Vastu. So point being, we are now full service financial services and products company. Great. Sir. Great. Okay, Vipul, coming on to the, we have some questions. Before I ask you the questions related to, today's topic, मुझे एक बात बताओ कि why is it that whenever one thinks of buying or selling a property, एक इमेज दिमाग में आ जाती है एक बहुत ही shrewd प्रॉपर्टी एजेंट या दलाल की, वो मतलब वो खोसला का घोसला वाला जो एक मूवी थी, that showed it beautifully. Why is it that? Because ऐसा है भी बहुत हद तक, sir. Sorry? To a very large extent, that is how it is. Right, because I think इतने सारे कोई फाइनेंशियल एजुकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, कोई भी इस फील्ड में घुस सकता है, तो जो बहुत सारे ठग जो हैं वो भी इस फील्ड में बैठे हुए हैं और कुछ भी बेचने को तैयार है. एक वो भी है सर. दूसरा, जो प्रॉपर्टी एजेंट्स आपको मोस्ट ऑफ द टाइम दिखते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर ईदर अलाइंड टू अ पर्टिकुलर फिजिकल लोकेशन. अगर मैं गुड़गांव की बात करूं तो लेट्स से एक एजेंट अगर न्यू गुड़गांव में काम कर रहा होगा तो वहीं काम कर रहा है. कोई अगर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे काम कर रहा है तो वहीं कर रहा है. एंड अदरवाइज लॉट ऑफ एजेंट्स आर अफिलिएटेड टू वन और द अदर बिल्डर, और उन बिल्डर्स के प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं. सो दे आर नॉट एक्चुअली प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी एज सच, दे आर सेलिंग प्रोडक्ट्स. अब वो सेल करेंगे तो सर सेल तो फिर शोर भी मचाना पड़ेगा, अपनी कमियों को छुपाना भी पड़ेगा, जो अच्छे पॉइंट्स हैं उनको एग्जैजरेट भी करना पड़ेगा. People, weigh your words. I am telling you, some of these words I am going to catch you on these words only. नहीं, तो हमने भी ऐसा किया है सर. मैं नहीं बोलूँगा, अगर आज मेरे को डीएलएफ का सामान बेचना है तो मुझे बताना पड़ेगा कि डीएलएफ कितना बड़ा बिल्डर है, कितना कुछ बनाया है, और मुझे शायद ये छुपाना भी पड़ेगा कि उस लोकेशन में उसका प्राइस जो है वो एज कम्पेयर टू अदर प्रॉपर्टीज कम है. बिकॉज द मोमेंट आई टेल दैट, तो बायर जो है वो पूछने लग जाता है वो कौन सी प्रॉपर्टीज है. सो वो इट्स लाइक आई सिंग द सॉन्ग ऑफ द गाय हु इज पेइंग मी. देयर द बिल्डर इज पेइंग मी, सो मेरी मजबूरी है कि मैं उसका गाना मुझे गाना पड़ता है. I like the honesty, but मैं ये सोच रहा हूँ कि ये ट्रैप तो नहीं है. मैं anyway. Also, Vipul, we have innumerable examples of common people getting duped in property dealings.
खरीदते वक्त, जैसे यू हैव आम्रपाली, यू हैव यूनिटेक, अभी एक सोसाइटी गुड़गांव में कोलैप्स भी हो गई थी. एवरीवन क्लेम्स टू बी एन एक्सपर्ट, बट मोस्ट ऑफ द रियल एस्टेट ब्रोकर्स वो आधा सच बताते हैं. They hide the relevant information or the risk which is associated with it. They exaggerate the good points. For example, द्वारका एक्सप्रेस वे कितने साल हो गए? 15 साल हो गए मेरे ख्याल से. द्वारका एक्सप्रेस वे में किसी आदमी ने, सॉरी 8-9 तो हो गए. हाँ, तो से 10 साल पहले किसी आदमी ने द्वारका एक्सप्रेस वे में ये सोच के कि 3-4 साल में प्रॉपर्टी रेडी हो जाएगी और मैं उसमें घुस जाऊंगा, तो वो तो लटक गया ना. एंड ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब जो कि बड़े एग्रेसिवली प्रमोट किए जाते हैं और उसके बाद फैंसी नेम्स के साथ प्रोजेक्ट किए जाते हैं, बट इट ऑल दिस डज नॉट गिव अस कॉन्फिडेंस ऑन द रियल एस्टेट एजेंट्स और कंसल्टेंट्स. व्हाट डू यू हैव टू से? तो आप बता रहे थे द्वारका एक्सप्रेसवे पर 10 साल पहले. तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि आधा सच बताया जाता है बेसिकली सारे प्रॉपर्टी डीलर्स जो है या प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स ब्रोकर्स. दैट्स हाउ द मार्केट इज डिजाइन्ड सर. बाजार का डिजाइन उस तरह से है. जो बायर है वो एडवर्टाइजमेंट देख के जाता है. जो प्रॉपर्टी ब्रोकर है या जो सेलिंग एजेंट है उसने वो एडवर्टाइजमेंट पे बायर को अपने तक लाने के लिए जो रास्ता बनाया है उसको पैसा खर्च किया है. So, and the buyer is also at that point in time wanting to listen to all that. Wanting to listen to those things. Okay. So broker is basically, most of the times it is sale which is happening. Okay. There's hardly a buyer and a broker who are getting into the diligence required to sell. I mean, to buy property. Okay. So and that's what is the topic of today. What diligence they should have. I mean, किस तरह की वो चीजें चेक करें प्रॉपर्टी खरीदने से पहले, क्या मिस्टेक्स वो ना करें. आई होप यू आर गोइंग टू कवर दैट. सर मैंने तो पिछले 11 साल में इतने गलतियां करी, इतने जूते खाए हैं मैंने. आई हैव बर्न माय हैंड्स बैडली. मतलब यू आर राइट कि क्लाइंट्स के पैसे खराब होते हैं, लेकिन जिसको ढंग का काम करना है उसकी भी इज्जत जाती है. सो देयर हैव बीन टाइम्स आई हैव ट्रस्टेड बिल्डर्स. जैसे आपने बोला अभी रिसेंटली एक सुपरटेक का प्रोजेक्ट जो है वो सुपरटेक हैज गॉन इनटू बैंक्रप्सी. एंड सो यू नो देयर हैव बीन टाइम्स व्हेन बिल्डर्स के साथ में काम किया, वहां गड़बड़ हुई. गवर्नमेंट के साथ दिक्कत होती है, लाइसेंस रेरा ये सब चीजें पेपर पे अच्छी लगती हैं, बट ये अगर जब फंसते हैं तब बड़ी प्रॉब्लम आती है. दैट टाइम गवर्नमेंट जुडिशरी इज वेरी स्लो, वेरी वेरी स्लो एंड इनएफिशिएंट व्हेन इट कम्स टू ट्राइंग टू give relief to the buyers. So what I have learned is that now going ahead, हमने पिछले 1.5-2 साल से I have actually stopped tying up with any builder. Okay. हमने अपना बिजनेस करने का तरीका ही बदल दिया. I have stopped tying up with any builder. I don't promote a particular project. I believe that the safety of a buyer doesn't lie in a builder or a broker or the government or license or RERA, etc. It lies in doing the basic due diligence. Okay, so I stop you here. We will come to this due diligence point, Vipul. So before telling us ये due diligence क्या है, ये mistakes कौन सी mistakes हैं जो कि लोगों को avoid करनी चाहिए, will you tell me how many of your clients have done the same mistakes when you finalize the deals with them? आपने भी कभी ना कभी. सर मैंने अभी तक टोटल लगभग 1800 के आसपास सेल्स रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी बेची है पिछले 10-11 साल में. उसमें से इफ नॉट मोर एटलीस्ट 150-200 क्लाइंट्स जो हैं इधर उधर कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं. भिवाड़ी में एक प्रोजेक्ट है जेनेसिस, उसमें फंसे हुए हैं. सुपरटेक के साथ वैली करके एक प्रोजेक्ट है, वहां है. चेन्नई में हमने कुछ काम किया था, वहां है. बस आप ये समझ ले, एक फर्क ये है कि मैं उन क्लाइंट्स के साथ अभी भी लगा हुआ हूँ. जो लीगल कॉस्ट है, जो रनिंग अराउंड है, जो करना है बिल्डर से, आर्बिट्रेशन, नेगोशिएशन. सो आई हैव नॉट मूव्ड अवे फ्रॉम देम, बट वो वाले डिसीजंस जो हैं वो और अच्छे से लिए जा सकते थे. दे शुड हैव बीन मच मोर स्लोअर एंड डिलिबरेट. Okay. So you do have some. I have some. I mean, you have some bad deals in your best of the doctors, I assume, would have had some bad surgeries. So and
Yes, I do have. It would be dishonest to say कि मैंने गलतियां नहीं करी. Okay, but Sir. those mistakes, they were unintentional, or I mean, uh, सर इंटेंशन इज नॉट इम्पोर्टेंट ना. अब इंटेंशन तो कुछ भी हो सकता no, है. no, I'm asking you. हाँ नहीं, अनइंटेंशनल था सर. लीगली तो ओके, लीगली नथिंग कैन बी पॉइंटेड एट अस. आई वाज एन एजेंट, सारी लाइसेंस प्रॉपर्टीज बेची हैं, बैंक जो उस पे लोन देने को तैयार था, सब कुछ था. बट जिसका पैसा लगा हुआ है सर, उसका तो उसकी जिम्मेवारी तो है ही ना. वही वही मेरा पूछने का मतलब था. So you do have some bad kitties, and या I like the fact that you are still trying to support those people and trying to get them whatever is due to सर, them. लॉट ऑफ देम आर फ्रेंड्स, लॉट ऑफ देम आर आर्म फोर्सेस ऑफिसर्स. कोई फैमिली वाला है, कोई जानकार है, कोई साथ का रोटेरियन है, कोई कुछ है. यू नो, पीपल आई नो. सो और कुछ अननोन भी है तो भी सर दे agreed to seek our services at some point in time. And that's why I'm saying no, the entire business is modeled in a way that it is not uh, designed to support a buyer, it is designed to support a seller. Okay, so now that we have established that, in spite of clear intentions, in spite of all this, some deals do go bad. So what are the mistakes? नहीं, so You know we what? are constantly working on that, sir. And as I said, हमने अपना काम करने का तरीका ये भी बदल दिया. Yeah, yeah. So, So what are the common errors that people do when buying a house? I mean, so top five, I would say one, people are made to pay for their insecurities a lot. ये people are खत्म, फियर्स डरा डरा के बेचना ना. ये खत्म हो जाएगा जी, यहाँ रेट बढ़ जाएगा जी, ये लोकेशन तो बहुत कम आती है, दोस काइंड ऑफ थिंग्स. एक जो जनरल एस्पिरेशन है किसी भी खरीदने वाले की, प्ले ऑन दैट इनसिक्योरिटी and sell a property. So people tend to take very quick decisions in that and do mistakes. Then जो नई प्रॉपर्टीज खरीदने में at times they tend to buy smaller properties vis-a-vis at the same locations, which if they look a bit further they can buy bigger properties. Then people buy a lot of brands at wrong time. I'm not saying that one should not buy brands. One should buy brands, but when people buy it at wrong time, they tend to overpay. Then people buy what is the meaning of location. wrong time? I mean, I didn't get it. सर, इंडिया का सबसे बड़ा बिल्डर है, उसकी एक प्रॉपर्टी है सेक्टर 91 में. सेक्टर 91 गुड़गांव. गुड़गांव में. अच्छा. मैं ज्यादातर गुड़गांव में ही काम करता हूँ सर, तो मैं आपको ये रेलेवेंट एग्जांपल यही के दे पाऊंगा. और उस बिल्डर ने 7 साल पहले जिस रेट पे सामान बेचा था, वो आज भी उस रेट पे मिलता है. Property is very good. Property is extremely good. A very high livability index, but the purchase price is not good for the person who purchased it in let's say 2015 or 14. Today it's a steal. Today it's a good property, but in 2014-15 it was a mistake. Okay. So okay, let's move ahead. और कौन सी mistake है? Better options are ignored. People don't do enough of search. They don't get into looking at deals in the comparable price points, comparable locations. So people spend less time and want better results. And finally, people don't understand the cost. खासकर under construction properties में, they do not understand the costs in detail. वो सिर्फ वो प्रॉपर्टी का बेसिक प्राइस देख लेते हैं. दे डू नॉट अंडरस्टैंड दी गवर्नमेंट का स्टैम्प ड्यूटीज, रजिस्ट्रेशन, जीएसटी का इम्पैक्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, बनने के बाद में इंटीरियर्स का लगाना पड़ेगा. सो थिंक थ्रू होता ही नहीं है. बस वो अभी खरीद लो. और टिपिकली व्हाट आई हैव सीन इज दैट पहले 1 साल तक घर पे बैठ करके मोस्ट ऑफ द टाइम हस्बैंड एंड वाइफ विल कीप लुकिंग फॉर प्रॉपर्टी और हर ब्रोकर से कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं. उसके बाद वो दोनों सोचते हैं कि हमें सब पता है, और फिर जो ब्रोकर उनको बताता है कि ये इन्वेंट्री खत्म होने वाली है, ये इसका रेट बढ़ने वाला है, उससे जाकर के 3 दिन में परचेज कर लेते हैं. अच्छा. ओके. सो जो इतनी उन्होंने अभी तक नॉलेज गेन की होती है उसको यूज नहीं करते, एनालाइज नहीं करते. नॉलेज नहीं गेन किया होता सर, उन्होंने डेटा इकट्ठा किया होता है. उसके बाद ना तो उस डेटा को उन्होंने कैटलॉग किया होता है, ना उन्होंने स्ट्रक्चर किया होता है, ना उन्होंने उसको एक प्रायोरिटी दी होती है. इट इज जस्ट डेटा, लॉट ऑफ डेटा विच दे आर नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड. राइट.
So 5 major errors what I can say is, sir, एक buying because of being scared, पैनिक में बाइंग कर लेते हैं, रेट बढ़ जाएगा, खत्म हो जाएगा. देन नई प्रॉपर्टीज जो है वो खरीद लेते हैं जो एट टाइम्स पुरानी से भी महंगी होती है. एंड पुरानी इज नॉट की पुरानी मतलब सेम लोकेशन पर आप महंगी नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो विदाउट एनी रियल रीजन. फॉर एग्जाम्पल पीछे अभी नॉट इवन अ ईयर अगो सेक्टर 89 में वेरी वेल एडवर्टाइज प्रॉपर्टी, उसका प्राइस वहां पर एग्जिस्टिंग डीएलएफ की प्रॉपर्टी से महंगा है, जबकि डीएलएफ की प्रॉपर्टी रेडी है और ये प्रॉपर्टी बननी है अभी आज से 3 साल बाद. Okay. So quality wise there is no compromise, it's a DLF property. और ये जो बननी है 3 साल में बननी है और ये बनेगी भी दीनदयाल के प्लॉट्स के ऊपर. DLF is a proper licensed high rise property. लेकिन since people are not trying to find out तो ये वाली प्रॉपर्टी खरीद लेते. So second is buying newer properties. Third is buying brands at the wrong time. Fourth would be ignoring better options by looking for better options, not just in terms of कि वो समझना ही नहीं चाहते कि डिजाइन ऑफ द प्रॉपर्टी क्या है. बहुत ना ब्रॉडली किसी ने बोला इतने प्राइस में. सो मोस्ट ऑफ द टाइम देयर आर टू थिंग्स बेसिस व्हिच पीपल मेक द बाइंग डिसीजन इन रियल एस्टेट. एक तो उनको लोकेशन का थोड़ा सा एक्साइटमेंट दे दीजिए और दूसरा कि देखो आपको कितने अच्छे प्राइस में मिल रहा है. नो वन गेट्स इनटू द डिटेल, स्क्वायर फुट प्राइस कितना है, एफिशिएंसीज कितनी है, पेमेंट प्लान क्या है, लॉट ऑफ डिटेलिंग रिक्वायर्ड. एंड फिफ्थ, they do not understand the cost of the property. So ठीक है, ये सब बहुत अच्छे आपने पॉइंट्स दिए, ज्ञान दिया इतना. तो अभी रास्ता क्या है, मतलब how should one go about purchasing a house then? Approach it in a different way. अभी क्या होता है सर, जब लोग घर खरीदने निकलते हैं, I mean this is something which I have seen typically in real estate. All any other professions, if you look at it, which are people who provide professional education, who get professionally educated and then provide a consultancy, say an architect or an advocate or a chartered accountant, etc. They do not sell the solution first. People go and make a choice of choosing the person first, talking to him, explaining the problem and then finding solutions. लेकिन रियल एस्टेट में रिवर्स होता है. रियल एस्टेट में सबको लगता है कि मेरे को 99 एकड़ या मैजिक ब्रिक पे जाऊंगा, 4 ऑप्शंस मिलेंगे, बात करूंगा, मैं टेक्निकली थोड़ा बहुत समझूंगा और मैं खरीदूंगा. सो रियल एस्टेट में पीपल बाय चूज अ प्रॉपर्टी एंड देन ट्राई एंड स्पीक टू अ पर्सन. Visibly in other professions, let's say you want to file a case today against someone. So you don't decide कि आपको रेरा में जाना है या सीसीआई में जाना है या एनसीएलटी में जाना है. You first decide the right advocate. Then you speak to the advocate. You understand the consequences of utilizing the different forums, the cost of doing it, and then go ahead. तो यहाँ पहले तो process differ करना चाहिए. People should choose the right person who will do the job for them. And then get into a proper structuring कि भाई हम किस किस प्रॉपर्टी को देखेंगे, discuss about the locations, discuss about the products. I'm not saying projects कि DLF का प्रोजेक्ट है, यहाँ प्रोडक्ट का आइडिया नहीं होता. why is it so कि ये आदमी जो है सेम जगह पर एक प्रॉपर्टी 60 लाख में दे रहा है, दूसरे 90 लाख में दे रहा है. There has to be something more. So get into those details, understand the products, discuss the locations. Why is a particular location expensive? Why is another location not expensive as of today? Understand the projects, then understand the buildings. When you get into these kind of detailings is when you make the right purchase decisions. Okay, sir. So I mean इस सब चीजों में बिल्डर एंड ब्रोकर का तो आपने बता दिया कि you have to find the right advocate. Similarly, you have to find the right broker. And what about the builder? Builder तो सर it's like car manufacturer. एक से दूसरे में कितना फर्क है? Same raw material. So builder buys the land from the same sources. नहीं, but some have deep financial pockets, some do not have, and bankruptcy हो जाती है. How do one safeguard against these? ये तो सर देखिए, इसमें दो चीज है. या तो रेडी टू मूव इन, या जितना रेडी टू मूव इन के पास में कोई खरीद सकता है, as closest as ready to move in as possible.
वन इज दैट सेफगार्ड। सेकंड इज पेमेंट प्लान। आप किसी भी बिल्डर को जब समझेंगे तो बिल्डर का अगर हम कॉस्ट स्ट्रक्चर समझें, मान लीजिए बिल्डर ने 100 रुपये लगाना है, तो गिवन दी लोकेशन उस जगह का बिल्डर का एक लैंड कॉस्ट होगा। लेट अस अज्यूम इट्स अ फादर लोकेशन, गुड़गांव के उस सेक्टर में जहाँ भी वो पहला ही बिल्डर है, तो उसको जमीन थोड़ा सस्ती मिलेगी बिकॉज मार्केट में उस लोकेशन की इतनी डिमांड नहीं है। सो लैंड ओनर्स के पास अभी बहुत सारे बिल्डर्स पहुंचे नहीं है, तो उसने वहां की जमीन का कॉस्ट का अंदाजा लेना कि 100 रुपए में से कितने रुपए की उसकी जमीन की कॉस्ट है, क्योंकि वो कॉस्ट तो उसने अपफ्रंट पे करी है, चाहे उसने कोलैबोरेशन किया चाहे अपफ्रंट पे करी है, बट दैट्स अ कॉस्ट विच द बिल्डर हैज ऑलरेडी इनकर्ड। देन वो उसका कंस्ट्रक्शन का क्या 3 4 5 साल का क्या होराइजन है, उसने लाइसेंसेस कैसे लिए हैं, ऑल दोस थिंग्स। वंस यू अंडरस्टैंड द कॉस्ट स्ट्रक्चर और उसको किस किस स्टेज पर कितना कितना फंड चाहिए, then you should match it with the payment plan. If you are matching it with a correct payment plan, then even if the builder runs away, you are safeguarded by the fact कि भैया आपके पैसे उतने ही लगे हैं जितना काम हुआ है। तो किसी स्टेज पर जाके व्हेन अगर लीगल इंटरवेंशन और इससे एक सिचुएशन आएगी जहां सब लोग इकट्ठा करके और उस बिल्डिंग को बना पाएंगे, बिकॉज अगर 100 रुपए लगने थे बिल्डिंग में, 50 रुपए लगे और आपने 50 रुपए दिए, तो बचे हुए 50 मिल करके लगा लेंगे, तब बिल्डिंग बन जाएगी। प्रॉब्लम क्या है कि आपने दे दिया 90 रुपए, बिल्डर ने लगाया 40 रुपए, 50 रुपए में वो अगली 2 जगह की जमीन खरीद ली, एंड यू हैव नो रिकोर्स। दैट इज वेयर द एक्चुअल चैलेंज इज। सो अंडरस्टैंडिंग द बिल्डर्स कॉस्ट एंड व्हाट ही हैज स्पेंट एंड देन अकॉर्डिंगली पेइंग। इसको छोटे एग्जांपल से देखें सर, भूल जाइए एक बार बिल्डर को। मान लीजिए आप कमीज बनवाने जाते हैं टेलर से और कपड़ा भी उसी से खरीद रहे हैं, तो कपड़े की कॉस्ट है जो उस टेलर ने लिए, कपड़े की लेट से 100 रुपए की कमीज में 30 रुपए कॉस्ट है, उसकी टेलरिंग की जो है वो 70 रुपए कॉस्ट है। और टेलरिंग की अलग अलग कॉस्ट है कि उसको बटन लगाना है, सुइंग करनी है, आयरनिंग करनी है। अब आप पहले दिन उसको 50 रुपए दिए हैं, काम से कुछ किया नहीं, कपड़े का 30 रुपए था, और वो अगर भाग जाए वहां से, तो आप जब दूसरी बार, या मतलब लेट्स से ही गोज बैंकरप्ट, आपके 50 रुपए लगे, सामान आपके पास 30 रुपए का। लेकिन अगर आपने 30 रुपए लगाए हैं, तो आपके पास कपड़ा तो एज इट इज है ना, यू कैन गो एंड either engage someone else or so understanding the payment plan is very very important when you are making a futuristic purchase. रेडी टू मूव में तो दिख गया सामने है, पैसा दिया अपना सामान ले गया। अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो पेमेंट प्लान और कितना फंड फ्लो है उसको मैच करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर नुकसान होने के चांसेस बहुत रिड्यूस हो। So what is a better choice, ready to occupy property or an under construction property? I mean, आपकी इससे थोड़ा सा मैं खुद भी थोड़ा सा वो हो गया हूँ कंफ्यूज, ready to occupy और under construction. So there is no better choice. A better choice is what you like and what I like. So एक दूसरे अपनी जरूरत को पहले क्लियरली डिफाइन करके और अपने रिस्क एपेटाइट को चेक करके देन मेकिंग अ परचेज। बट अगर आप मुझसे ब्लैंकेट क्वेश्चन पूछेंगे और अगर मेरे पास पैसा है आज अपफ्रंट, आई वुड से 90 out of 100 times I should go for a ready to move in property for a very simple reason. आप बहुत सारे रिस्क को उसमें रिड्यूस कर देते हैं। Yeah, right. बहुत सारे रिस्क को रिड्यूस कर देते हैं। So what kind of projects should one choose if suppose somebody is not going for ready to move in? So say I give you an example. A lot of people are working, you know, they don't know where to settle down, and ultimately they decide कि okay ठीक है, अब मैं 3-4 साल रह गए या 10 साल 5 साल रह गए हैं, और they decide कि okay I may be working in Bangalore but I want to settle down in say Gurgaon. And उस प्रॉपर्टी मतलब अभी मेरा गुड़गांव शिफ्ट करने में टाइम है, तो मेरे पास 4-5 साल हैं या 3-4 साल हैं, तो आई मे गो इन फॉर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। तो सर अंडर कंस्ट्रक्शन में जो एकमात्र सेफगार्ड है, जैसे ओके बेसिक हाइजीन फैक्टर्स तो देखना ही है कि भाई रेरा लाइसेंस, रेरा आ गया है, लाइसेंसेस है, सैंक्शंस है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस है, बैंक से लोन्स के अप्रूवल है, ये सब हाइजीन फैक्टर्स तो इग्नोर किए ही नहीं जा सकते, ये तो होना ही होना है। बट अदर देन दिस, a very very strong emphasis should be made on understanding how I will pay to the builder and then accordingly how the construction will happen. As I am saying sir, अगर आप प्रोजेक्ट बेसिस एनालिसिस करें, मान लीजिए बिल्डर ने पूरे प्रोजेक्ट में 500 करोड़ रुपए लगाने, तब जाके वो 5 साल में डिलीवरी दे पाएगा।
जिसमें से उसने 150 करोड़ की अगर आज जमीन खरीदी है, तो उसका मतलब 150 करोड़ इज 30% ऑफ दैट 500 करोड़. So if I am paying anything more than 30% of my payment committed to the builder, I have taken a proportionate risk. तो ये एज अ बायर कॉमन आदमी को कैसे पता चलेगा कि कितने की जमीन खरीदी, कितने का? सर ये सब चीजें तो रिसर्च बेस्ड है. आजकल तो जो मेहनत करेगा वो पता कर ही लेगा. जमीन का कॉस्ट तो सब जगह क्लियर है सर. तो मतलब आप ओके, जब वो आप किसी, यू कैन नॉट बी 100% एक्यूरेट, बट प्रिसाइज तो हो ही सकते हैं काफी हद तक. यू कैन बी क्लोज टू दी फिगर्स एंड देन यू कैन हैव अ मार्जिन ऑफ एरर. ओके, एक और क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा है, और किसी ने अभी मेरे को व्हाट्सएप पे भी भेजा है, कि व्हाई इज इट दैट व्हेन यू वांट टू बाय अ प्रॉपर्टी दे से मार्केट इज वेरी हाई, और जब बेचने जाओ तो कहते हैं मार्केट धीरे, वो धीरे चल रही है आजकल, थोड़ी डाउन है। ये पेरेनियल प्रॉब्लम है ये प्रॉपर्टी। नहीं, अच्छा सर, ये तो हर जगह होता है. देखिए, इट्स नॉट प्रॉपर्टी. नाउ आई विल से व्हाट काइंड ऑफ अ प्रॉपर्टी. अगर आज आप शेयर मार्केट में भी अपना स्टॉक बेचने जाएंगे, तो आप जैसे बिड लगाएंगे, 100 रुपए का चल रहा है, आप 100 रुपए की बिड लगाएंगे तो उसी वक्त बिक जाएगा. आप 101 की लगाएंगे, देन यू हैव टू वेट फॉर दी बायर एट 101. और अगर 100 रुपए में बिक रहा है, आप खरीदना चाहते हैं, आप 99 में खरीदना चाहेंगे तो नहीं मिलेगा. आप 101 लगाएंगे तो आपको फटाक से हो जाएगा. रियल एस्टेट में होता क्या है, बिकॉज इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट परचेज विच पीपल हैव डन इन देयर लाइफ टाइम, सो दे आर नॉट एबल टू गेट अ प्रॉपर हैंडल ऑन द प्राइसेस. एंड मार्केट प्राइस का जो सेलर बायर का फ्लक्चुएशन है सर, वो इसलिए होता है बिकॉज ब्रोकर को भी कहीं ना कहीं वो गैप बना करके टू कंपीटिंग माइंड्स को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाना होता है. द बायर इज कंपीटिंग फॉर गेटिंग द बेस्ट प्राइस एंड सो इज द सेलर. बायर वांट्स लोएस्ट, सेलर वांट्स हाईएस्ट. ये L1 H1 तो चलता रहेगा. लेकिन बाजार के रेट के आसपास की डील्स हो जाती हैं अगर ढंग से मेहनत करी जाए तो. इफ अ सेलर और अ बायर इज वर्किंग हार्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल द बायर एंड सेलर, बायर या सेलर किसी को भी ये समझना चाहिए, बड़ा काम करना है, फायदेमंद काम करना है, तो 2 दिन में नहीं होगा. आपको उसके लिए 3 से 6 महीना लगाना पड़ेगा. विच लॉट ऑफ पीपल वांट टू सेल बट दे स्टार्ट वर्किंग ऑन इट 3 days बिफोर व्हेन दे नीड द मनी. आप पहले से लगाएं, प्राइस डिटरमाइन कीजिए, समझिए, ढंग का आदमी चूज कीजिए जो आपको सेल में हेल्प करेगा, उसके साथ मेहनत कीजिए और उसकी कॉस्ट को समझिए और सपोर्ट कीजिए. ब्रोकर आपका काम कर देगा. सिमिलरली व्हेन इट इज कमिंग टू बाइंग, अलॉट दैट मच ऑफ टाइम. बहुत से बायर्स को क्या लगता है 2 करोड़ रुपया खर्च करें, बिल्कुल सही है सर, कर रहे हो, बट टाइम भी आपको लगाना पड़ेगा. अगर आज मुझे अपनी सर्जरी करवानी है किडनी की, तो आई जस्ट कांट से कि डॉक्टर साहब मैंने पैसे दे दिए, मैं घर पे लेटा हूँ, आप काम करवा देना. हिल से सर आप आओ, आप प्री ऑप पहले अपने सारे टेस्ट कराओ, चेक करो, फिर एक दिन आपको 3 दिन हम पहले प्री ऑब्जर्व करेंगे, आप ऑपरेशन के लिए फिट भी हो या नहीं. फिर आप का ऑपरेशन करेंगे, फिर एनेस्थीसिया आईसीयू में रखेंगे, फिर पोस्ट ऑपरेटिव देखेंगे, फिर डिस्चार्ज करेंगे, फिर रिव्यू करेंगे. Similarly, how many times a person would go and buy a property worth 50 lakh, 1 crore, 1.5 crore, 2 crore? So buyer should give it that much of time. People are not ready to spend that time. I would say uh, a person who wants to make a good purchase cannot do it before 3 to 6 months. वो भी मेहनत लगेगी. 100 घंटे तो कम से कम लगाने पड़ते हैं, 80 से 100 घंटे. 100 घंटे इंडिविजुअल लगाएगा, 50-60 घंटा ब्रोकर लगाएगा, तब अच्छी तो अच्छी, एंड व्हाट अबाउट द और हिडन तभी अच्छी चार्जेस? सेल होती है. आई अंडरस्टैंड, आई एग्री। आई मीन ड्यू डिलिजेंस तो करनी ही पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ढंग से देखना पड़ेगा क्या थोड़ी है नहीं, उस। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सर. हाँ, करनी भी चाहिए। एक हाँ, आपकी मेहनत की कमाई है, इतने बड़ी परचेज है प्रॉपर्टी डीलिंग, प्रॉपर्टी डील्स जो होती है। सारी एनीवे, बड़ी चीजों में सर. हाँ जी सर. बट देयर आर सो मेनी हिडन चार्जेस आल्सो, विपुल। हिडन चार्जेस होते हैं सर, वो धीरे 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 व्हेन यू वर्किंग ऑन थिंग्स, व्हेन यू डू योर डिलिजेंस, तो हिडन चार्जेस की लिस्ट बन जाती है. मोस्ट ऑफ द टाइम जिन लोगों को बहुत साल हो गए करते हुए, उनको ब्रॉडली पता ही होता है कि क्या क्या चार्जेस हैं. कोई नया ब्रोकर हो तो हो सकता है उसे ना बताओ, बाकी जो पुराने टाइम से कर रहा है, जिसने 10 20 30 40 प्रॉपर्टीज में काम किया है, उनको पता होता है हिडन चार्जेस हैं. कोई पीएलसीज लगी हुई हैं, पार्किंग के एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, एम्यूनिटीज के अगर कोई बिल्डर पर्टिकुलरली अलग चार्ज कर रहा है. ओवरऑल यू कैन से
अगर एक बेसिक प्राइस प्रॉपर्टी का 1 करोड़ है तो 20 से 22% की एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है सर, जो इनिशियली दिखता नहीं है, बट इतना प्रॉपर्टी खरीदते खरीदते खत्म होते होते इतना पैसा एक्स्ट्रा लग जाता है। तो कहाँ पे नेगोशिएशन हो सकती है? मतलब वो कौन से एरियाज हैं जहां पे एक बायर नेगोशिएट कर सकता है? एंड कैन वी हैव सम काइंड ऑफ अ चेकलिस्ट इन आवर टेलीग्राम चैनल कि भाई these are the things which you need to check, and also these are the places where you can try and negotiate. सर नेगोशिएशन बिल्कुल हो सकती है अगर बायर जो है वो सब्र रखे और ऑप्शनैलिटी क्रिएट करे। और क्या क्रिएट करें? ऑप्शनैलिटी। ओके। देखिए सर, रियल एस्टेट जब कोई बेचने निकलता है, रियल एस्टेट तो छोड़ दें, हम और आप, कोई भी इंसान अपना फिक्स डिपॉजिट भी तब तोड़वाता है जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। आप फिक्स डिपॉजिट तोड़वा के और यूरोप घूमने नहीं जाते, उसके लिए अलग से पैसा इकट्ठा करते हैं। तो रियल एस्टेट बेचने का मतलब है दैट पर्सन हैज अ रियल नीड, वेदर इट इज अपग्रेडिंग दी प्रॉपर्टी, या कोई अपने बच्चे को बाहर भेजना है, या कोई शादी करनी है, या कोई व्यापार में नुकसान हुए, तो सेलर पे भी उतना ही प्रेशर है। So if you are able to understand the seller's pressure, you will be able to make a smart negotiated deal. तो थोड़ा सा पेशेंस, लुकआउट एंड ऑप्शनैलिटी कि भैया ये बिल्डिंग नहीं तो इसके बराबर की दूसरी बिल्डिंग है, वहां खरीद लेंगे। और ये ये वाली जो नेगोशिएशंस प्लस अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट कि सर्टेन थिंग्स विल ऑलवेज बी लेसर प्राइस्ड एंड दैट इज वेयर यू विल गेट डील्स। आपको अब कनॉट प्लेस में डील थोड़ी मिलेगी सर, लेकिन आप जैसे आज करें द्वारका एक्सप्रेसवे का सेंटीमेंट किसी टाइम में पिटा हुआ था, तो वहां आपको डील मिलेगी। ओके, वी कैन ओपन द चैट जयेश नाउ एंड मैं व्हाट एक एक्शंस। आपको एक टिप देता हूँ सर यहाँ पर ना, सिंस यू टॉक्ड अबाउट, देन यू कैन ओपन द चैट। डील्स कहाँ मिलती हैं सबसे ज्यादा, जो हमने अपने पिछले 10-12 साल के मैंने एक्सपीरियंस में देखा है, द बेस्ट टाइम in a project to purchase is not when the project is launched या प्री लॉन्च या नहीं, बिकॉज तब तो बहुत लोग उसको बेच रहे होते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज इन द मार्केट, लॉट ऑफ इंक्वायरीज आर गेटिंग जनरेटेड, सो देयर इज अ डिमांड बिल्डअप। तो नेचुरली प्राइस जो है हाइट रहता है, बिल्डर ने बहुत सारा मार्केटिंग बजट खर्च किया होता है, तो उस वक्त की जो मार्केट की डिमांड है वो सारी उधर डाइवर्टेड होती है। उसके बाद बिल्डर जो है वो अच्छा बिल्डर, लेट्स से समवन लाइक डीएलएफ और आज की तारीख में और जो हैवी एडवर्टीजमेंट्स करते हैं, लेट्स से गोदरेज, टाटा, ऑल ऑल ग्रेट ए बिल्डर्स, ये लोग शुरू में अच्छे रेट के ऊपर सामान बेच जाते हैं। इनकी ब्रांड, इनकी मार्केटिंग एफर्ट, इनका जो नेटवर्क है, उसके बेसिस पर बढ़िया से बाइंग हो जाती है। बायर ये सोच के लेता है, हाँ जी आज तो मैंने खरीद लिया और मैं इसको प्रॉफिटेबली, इन्वेस्टर को लगता है कि मैं 2-3 साल में खूब सारा पैसा कमा लूंगा। अब वो प्रोजेक्ट तो अपनी स्पीड से ही बनेगा। गोदरेज भी अगर 10 एकड़ का प्रोजेक्ट बना रहा है तो 6 महीने में नहीं बना सकता, उसको 3-4-5 साल लगेगा। सेम इज विद एनी बिल्डर, मतलब लेटेस्ट से अगर आज यूएस की बेस्ट कंपनी भी आ जाएगी, उनको भी लगेगी। बायर ने पैसा लगा दिया, उसकी वेट शुरू हो जाती है इन्वेस्टर की। तो जब वो लास्ट के 12 महीने बनने से पहले होते हैं, जब बिल्डिंग ना बनी होती है ना अ, गिरी होती है, मतलब स्ट्रक्चर तैयार है और इंटीरियर्स के काम चल रहे हैं और एक कॉमन आई को दिखता नहीं है कि इसमें काम हो रहा है, उस वक्त में सेंटीमेंट बड़ा डिप्रेस्ड होता है, बहुत ज्यादा से ब्रोकर्स भी उस पर काम नहीं कर रहे होते, बिल्डर की इन्वेंट्री बची हुई होती है, वो अपना मार्केटिंग का बजट वहां लगा नहीं रहा होता, इन्वेस्टर को डिप्रेशन आ रखा होता है, रेट ही नहीं बढ़ रहे, रेट ही नहीं बढ़ रहे, उसका हौसला टूट जाता है उस टाइम। सो जो डील्स उस टाइम मिलती है 1 year बिफोर पोजेशन एंड 6 months to a year आफ्टर पोजेशन, ये वाला जो 12-18 महीने का विंडो है सर, इसमें जो डील्स मिलती है प्रोजेक्ट्स में, दे आर वैल्यू फॉर मनी। आपको ऑलमोस्ट 5 साल पुराने रेट की डील्स मिल जाती है। अच्छा, हाँ, और ये मेरा मतलब दिस हैज बीन अ कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस विद मी। तो 1 year बिफोर पोजेशन एंड 6 months आफ्टर पोजेशन के इस दौरान जो है जनरली काफी डील्स मिलती हैं। आपको एक अभी रिसेंट एग्जांपल सरकारी दे देता हूँ, AWHO 95 में सर अभी जो सेलर्स हैं
they are not finding buyers at the rate at which they had purchased from AWH. Right. जबकि प्रोजेक्ट तैयार है, उसमें आज जीरो रिस्क है, लोग रहने लग गए। क्योंकि So that's अभी सेंटिमेंट रिकवर हो रहा है। इसी that's तरह a very से good tip. In fact, I have personally experienced this in Secunderabad. Just price पे मैंने खरीदा था. I bought it in 2012. नहीं, sorry, 2012-13 में मैंने खरीदा था और मैंने उसको 2020 में बेचा. It was almost at the same buying price. I agree with you. So point being, अगर आपने 5-7 साल का ब्याज हटा दिया तो आपने 30-40% नहीं, मेरा तो लॉस हुआ उसमें. यस, जो वो कैपिटल गेन टैक्स जो करते हैं उसमें मुझे आई डिडंट हैव टू पे. आई शोड लॉस देयर. यस, आई हैड दैट लॉस. या तो तभी मैंने शुरू में ही बोला था कि यू आर टॉकिंग टू अ होस्ट हु हैज हैड सम रियल bad experiences in real estate. Okay, so that's this thing. Good point which you have given. And so what actions do home buyers do that prove penny wise pound foolish type हो जाता है? जैसे मैंने कहा सर, एक तो होम बायर्स एट टाइम सेकेंडरी मार्केट को इग्नोर कर देते हैं, बिल्डर्स के पास जाते हैं डायरेक्ट. बिल्डर इज अ सोफिस्टिकेटेड सेलर सर. देखिए, बिल्डर के पास में पूरा सिस्टम है, मार्केटिंग टीम है, 10-12 सेल्स के लोग हैं. ही हैज कैपिटलाइज्ड हिमसेल्फ. सो बायर जब जाता है तो वो बिल्डर के प्राइस पे सामान खरीदता है, मार्केट के प्राइस पे नहीं खरीदता. तो किसके पास जाए वो? बाजार से ढूंढ के खरीदे सर. आईपीओ में नहीं होता है. आईपीओ लिस्टिंग आप हार्डली 1 या 2 आईपीओ होगा जिसके अंदर आज तक लोगों ने पैसे कमाए. वॉरेन बुफे तो कह के थक गया, भाई आईपीओ में पैसा मतलब. So home buyers, when they are buying a home for themselves, they ignore the secondary market. That is the first challenge they face. Okay. And second, बहुत उस वक्त प्रेशर में आगे खरीद लेते हैं डर के. जो एक बड़ा कॉमन डायलॉग है जी, आप देख लो कल, आप बता देना जी डिमांड बहुत है, रेट बढ़ जाएगा. So Jayesh, can we allow the questions from this thing? We can see Shiben ji का question है and Monica ji का भी question है. Can we unmute them sequentially? Sure, sir. What is the question like? Let me see chat. Mr. Shiben Das has asked, deals from the builder. From the builder or primary buyers. सर ये डिपेंड करेगा. ऑप्शंस दोनों जगह मिल जाते हैं. ऑल्दो इट इज समथिंग वेरी वेरी प्रोजेक्ट स्पेसिफिक. थोड़ा सा माइक को पास लाओ, तुम्हारी आवाज थोड़ी वो हो रही है. आई एम सेइंग सर, मिस्टर शिवेन दास का क्वेश्चन है, डील्स फ्रॉम द बिल्डर और फ्रॉम द प्राइमरी बायर्स. सो मेजरली इट इज फ्रॉम द प्राइमरी बायर्स, बट कई बार बिल्डर से भी डील मिल जाती है. अगर बिल्डर के पास बहुत थोड़ी सी इन्वेंट्री है तो वो दे देता है, क्योंकि उसको ये होता है एग्जिट करो, आगे बढ़ो, सारा पैसा आज मिल रहा है, बिल्डिंग मेरी लगभग तैयार है. ओके. हाँ जी. मोनिका का क्वेश्चन है, रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज द क्वालिटी ऑफ. नहीं, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर रेडी टू मूव इन में ऐसा है तो नई में सही हो जाएगा, ऐसा किसने नहीं. इसको एसेस करने का तरीका इजी है. आप किसी आर्किटेक्ट या स्ट्रक्चरल इंजीनियर को एंगेज कीजिए, वो आपके लिए जाकर के एक बेसिक रिपोर्ट तैयार करेगा स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ की और किस तरह की बिल्डिंग बनी हुई है. लेकिन विपुल, ये थोड़ा सा कंटेंशियस इशू है. ये किस स्टेज पे तैयार करेगा? अब मैंने 4-5 प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई कर लिए, मुझे 4-5 प्रोजेक्ट अच्छे लग रहे हैं. अब उसकी स्ट्रेंथ वगैरह जो है, मैं सब में सबको देखो सर, जो चिंतल पैराडिसो वाला जो अभी रिसेंट एग्जांपल हुआ जिसमें आपने बताया कि बिल्डिंग गिर गई, वो एक ऐसी चीज है जिसे पकड़ पाना पॉसिबल नहीं है. और there the responsibilities need to be fixed, which is a part of the law.
बट जनरली अगर आप एक करेंगे, कोई भी एक अच्छा कंस्ट्रक्शन या स्ट्रक्चरल इंजीनियर या सिविल इंजीनियर या एक आर्किटेक्ट कैन डू अ बेसिक सर्वे एंड चेक पॉइंट्स करके आपको बता सकता है कि भाई इस प्रॉपर्टी के अंदर इसमें किस तरह का काम हुआ हुआ है। बिकॉज जितना भी रियल एस्टेट जो हाई राइज बनते हैं, दे ऑल अडियर टू अ बेसिक नॉर्म। हाँ, अब पेंट अच्छा नहीं हो रखा या कोई वो मतलब वो कर्टेन वॉल्स ढंग की नहीं बनी है, दे डोंट ऐड टू द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर। तो उतना अगर आपको प्राइस डिस्काउंट मिल रहा है, आप उसमें रेनोवेशन या रिफर्बिशिंग कर लीजिए प्रॉपर्टी। अगर स्ट्रक्चर ओके है तो बाकी तो चीजें यार, दोस कॉस्ट कैन बी वर्कड आउट। नो बट जो मोनिका जी का क्वेश्चन ही है, आई जस्ट वांटेड टू नो दैट कि इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। मैंने हाँ, मैंने दो एज ए बायर दो तीन प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई कर ली। अब मैं नहीं जानता कि उनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी क्या है। as I तो क्या said, sir, you'll have to engage in a professional for that. That's a diagnostic issue. वो वाले ये एक दूसरी समस्या है सर। हम बाकी सब जगह पैसे खर्च करना चाहते हैं, बट वहां नहीं जहां जरूरी है। जिस घर को आपको 50-60 साल यूज करना है, जहां 2 करोड़ रुपया लगा रहे हो, वहां अगर आप 10-15 हजार रुपये एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर में लगा भी दो, 25 हजार भी लगा दो, 30 हजार भी, तो नुकसान क्या हो गया आपको उसमें? राइट, ओके। सो एंगेज थोड़ा द सा राइट पर्सन हु कैन गिव यू द राइट आंसर। थोड़ा सा चुभता तो है विपुल, ऐसी बात नहीं है वो। वो बाद में नहीं चुभेगा सर। ठीक है, ओके। आई मीन, आप नहीं, अगर इट्स डायग्नोस्टिक नहीं साउंड। करवाओगे, आप अगर अपना ईसीजी नहीं करवाओगे, तो हार्ट अटैक नहीं आएगा किसी दिन। नहीं, इट्स राइट, यू आर बाइंग अ प्रॉपर्टी ऑफ 1.5 2 crores और 50 लाख व्हाटएवर, एंड आपने अगर एक प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई कर ली है फाइनली, सब सर, पैरामीटर्स अगर मीट हो गृह रहे हैं। प्रवेश में 50 हजार रुपये खर्च कर सकते हो, तो एक प्रॉपर सिविल इंजीनियर को या स्ट्रक्चरल इंजीनियर को सर्वे करवाने का 25-30 हजार नहीं लगा सकते? राइट, आई थिंक इट इज स्पेशली आफ्टर दिस पैराडीजो building collapsing, this has become much more And all relevant. these people, when I say structural engineer, they have their tools. Every business has their tools, sir. हर व्यापार के अपने टूल्स एंड इक्विपमेंट होते हैं। वो ऐसे नहीं है, वो जाएगा देखेगा बिल्डिंग की उसने कितना बनाया है, उसमें वो दे हैव देयर असेसिंग टूल्स। दे वैल्यू एंड दे डू ऑल दीज थिंग्स। Okay, there is another question from प्रियंका, Priyanka. Yeah. ये तो इट्स अ वेरी ब्रॉड क्वेश्चन। ये तो जब तक मुझे नहीं पता होगा कि कौन सा बिल्डर है, कहाँ लगाया है, क्या स्टेज है, रियली कांट से ब्रॉडली। बस मैं इतना बता देता हूँ कि एक्चुअली Okay, स्पीकिंग just a second. लॉन्ग टर्म में Vipul, रियल let me एस्टेट में read out the नुकसान नहीं होगा। question. Let me मैं read पढ़ out the लिया सर। question. सर एनीवे No, no, आओ no, no. मैंने। हाँ। For the knowledge of all others also who are in the this thing. So Priyanka's question is, sir, any way out when a buyer is struck with a defaulting builder who has abandoned project and run away, or is it money down the drain? Because it's a very relevant question and बहुत सारे लोगों के ऐसे फंसे होते हैं पैसे। या या मैं विपुल। सर देखिए, वैसे तो इफ वन अंडरस्टैंड्स द प्रोजेक्ट ओनली देन वन कैन से कि इसकी आज की स्थिति क्या है। राइट, बट रियल एस्टेट के अंदर थर्ड पार्टी राइट, रिटेल बायर इज अ थर्ड पार्टी। इट्स नोन राइट, एज अ थर्ड पार्टी राइट टेक्निकली स्पीकिंग। वो लॉन्ग रन में कभी भी पूरी तरह से नुकसान में हो ही नहीं सकता। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल, वन विल हैव टू सी कि उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे चार्जेस क्या है। बिल्डर ने अगर कोई कर्जा उठा रखा है नहीं, अब वो भाग भी गया है तो इसके अंदर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ही लेकर के भागा है ना सर। राइट, बट दुनिया तो चल रही है, आसपास की लैंड एक्सपेंसिव हो रही है, डिमांड जो है वो कॉन्स्टेंटली उस एरिया में बढ़ रही है। तो 2-3-4 साल में क्या होगा, लैंड की प्राइस इतनी हो जाएगी कि जो बायर्स फंसे हुए हैं वही अगर इकट्ठे होकर के पैसे लगा के बनाएंगे, दे विल रिकवर देयर इन्वेस्टमेंट्स। तो वो 100% लॉस कभी नहीं होता है। राइट, I would not say राइट, it is going to be a very profitable situation, but uh, it is definitely not money down the drain in the long run. But वो long run कई बार can stretch to real long. It can be 8, 10, 12 years. मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ।
There is a project in Gurgaon in Sector 80 by the name of Acme Raga. This project is right on the highway, a very, very prime location. And this is just adjacent to Godrej Frontier Eco project, Sector 18. Now, Godrej Frontier is a ready project. And this project has been abandoned. इसमें भी 500-700 यूनिट थी और 200-250-300 सेल हुई और देन बिल्डर हैज स्ट्रक्चर खड़ा करके चला गया. बट आज नहीं तो कल ये जो प्रोजेक्ट बिका था, ये बिका था अराउंड रेट ऑफ अराउंड 4,500-4,700 रुपीज पर स्क्वायर फीट टाइप्स. अभी वहां पर मार्केट प्राइस है स्टार्टेड टचिंग 6,000 रुपीज स्क्वायर फीट, 6,500 रुपीज स्क्वायर फीट. अगर आज एक बिल्डर को नया प्रोजेक्ट लाना है तो उस जगह की जमीन की और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में 6,500 रुपए में भी वायबिलिटी नहीं है. सो देयर वुड बी अ टाइम व्हेन दीस बायर्स विल रियलाइज कि यार इससे अच्छा लड़ाई अपनी जगह वो करते रहेंगे. वो बायर्स हैव टेकन द बिल्डर टू द कोर्ट एंड वो सब चल रहा है. व्हाई नॉट ऑल ऑफ अस गो क्रिएट अ ग्रुप, 1,000 पे स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा डाल के पहले अपनी बिल्डिंग बना लेते. एंड द डे दे डू दैट the project comes alive. और I think Vipul, वही this is a होगा very solution. this is a very wide topic and बहुत ही इसमें बहुत सारे issues हैं. Actually, I would like to you know talk about it in detail because बहुत सारे लोग इसमें फंसे हुए हैं. मेरे पास बहुत सारे people, a lot of people who could not join us today have sent this query only कि they are in different projects which are abandoned and what to do. So I think we will have to do a special this thing for and we will involve our legal expert also, Mr. Masi, I think, who's a Supreme Court lawyer, so dealing only with this. So I think we'll have a separate session on this. Meanwhile, before we move on further, I would also like to inform everyone that Vipul is also associated with an NGO working for neonatal mortality. The name of the NGO is Vastra, and it is founded by Lieutenant Colonel Dr. Parminder Kaur. Parminder is she's a doctor and she's from the army, and she has done a wonderful job and received many awards also. Vipul, could you please tell us something? Dr. Parminder served the Indian Army. She's a medical doctor and she started this NGO on her own because she wanted to serve the most underserved, and that is where this is an NGO where she completely is her effort and money and resources. So I believe if we can support her in small ways by maybe contributing 500 to 1,000 rupees, she'll be able to save that much more lives. What she does is she goes to government hospitals, educates the women there, and gives them a packet which contains some items which can save newly born children before they complete a month. These packets contain a set of diapers and hand sanitizer, some clean clothes, and those are some of the reasons as to why these kids don't survive. So, and as you can see, she has been, showcased on NDTV by the Vastra has been showcased by NDTV by none other than Shri Amitabh Bachchan, and also Parminder has received Women's Excellence Award. And gentlemen, you can also support this cause through the corporate social responsibility funds in your respective corporate sector organizations. Small steps if we take will go a long way in improving the lives of many through this effort. Great effort, Vipul. Great effort, Dr. Parminder. It's actually commendable. So, James Stephen has a question. Is there any contract with a buyer versus a professional? Yeah, obviously आप किसी से भी कुछ काम करवाएंगे तो contracts तो आपको बनाने ही चाहिए. Whatever is the scope of work and services to be provided, what kind of money at what stage, so that contract definitely should be there, and
if you want a basic draft of it, तो आप पहले ये समझ लें कि वो ब्रोकर आपके लिए या जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर है वो आपके लिए क्या काम करके देगा, कितना स्कोप ऑफ वर्क है, उसको डिवाइड कर लीजिए अलग अलग स्टेजेस में और उस हिसाब से उससे अपने पेमेंट की बात कर लीजिए. That's the basic of working on a contract like that. Okay. Okay, Vipul, we are short on time and we don't seem to be getting any more questions. Any last minute questions, any kind of thing, doubts coming to anybody's mind can, put it in the chat box, or the link to the Telegram channel is given in chat box. You can also join that Telegram channel, and through that also, or through WhatsApp also, you can send us your queries. We'll definitely respond to it. Atul, I think you have joined a bit late. Yes, there is a checklist before you buy a plot or a flat. आप उस लोकेशन के बारे में समझें, प्रोडक्ट के बारे में समझें, प्रोजेक्ट के बारे में समझें, एंड देन बिल्डिंग्स के बारे में प्रॉपर कीजिए. सो okay, Monica, what I'll do is I'll share this checklist on the Telegram channel which Colonel Manish Kochhar has created, and वहाँ पर करना चाहिए property. Yeah, that's what I'm telling everyone. In case there is a specific question you want the answer to, or this checklist also, we will upload it on the Telegram channel. Be part of that. And it's not only the real estate thing. Going forward, we are going to have many such important documents which will help you in taking better financial decisions in your life, and you will be definitely benefited through that, joining that channel. And yeah, please Atul, you can ask the question. Sorry if there is somebody who's senior who's from the uniform fraternity and somebody is senior, I am taking the name, I don't know. And even otherwise also people who are from non-uniform fraternity and they are elder to me, my respect to them. I'm taking this opportunity to address by the first name, but my respect is always for everyone. Yeah, Mr. Atul, we can have Microsoft. enable the mic. Okay. Jayesh? Sir, I'm not able to do that from my end. Can you please Okay, try? just a second. I have enabled. Just see, Mr. Dang, can you? Yeah. I think I'm audible now, huh? Yes. If this is Atul, then he's my course mate. Yeah. Kal Manish, good evening to you. Good evening, sir. Hi, Vipul. Hi. A big hi. क्या हाल है भाई? But all well. Sorry, I just joined a bit late. Actually, why I asked about this checklist is that recently I had some interaction with some builder at Ludhiana. Okay, so basically, now initially they started selling the plots. Okay, but after some time they stopped selling the thing. Okay, so I just inquired why this happened so abruptly. So then somebody told, though the builder didn't tell this thing, that is there something that before started selling a plot, one, as per the RERA guidelines, the new RERA guidelines, one has to pay minimum 80% to the landowner. नहीं, ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं. रेरा की ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि आपको इतना पैसा किसी को देना हो. रेरा की गाइडलाइन ये है कि जो भी पैसा एक प्रोजेक्ट के लिए आएगा उसका 70% पैसा हैज टू बी इन एस्क्रो अकाउंट, और उसका अकाउंट सबमिशन होगा रेरा को कि ये 70% पैसा कहाँ लगा है. नहीं, like what I was, that's why I asked for this checklist specifically, because वहाँ पर the great point was that the builder had just given 25% to the landowner, जो हम बयाना कहते हैं, whatever in the local language, ठीक है, and that is why
then this thing spread like fire in the circles, and accordingly he stopped selling the things. And it's a reputed firm. नहीं तो इसमें क्या हो सकता है ना अतुल वन ऑल्दो आई दिस इज जस्ट अ कंजेक्चर आई एम मेकिंग बिकॉज आई डू नॉट हैव ऑल द फैक्ट्स लेकिन This it is is highly- Aldeco, basically Aldeco project. नहीं वो ठीक है यार बट उसने जो लैंड ओनर से एग्रीमेंट किया होगा ना उसके अंदर उसने लैंड ओनर को ये बोला होगा कि मैं आपको एक पर्टिकुलर डेट से पहले 80% पेमेंट कर दूंगा Okay, और वो डिक्लेरेशन उसने रेरा को दी होगी okay. और वहां वो उस कमिटमेंट को फेल कर गया होगा अच्छा, okay, understood. बट Understood. ऐसी रेरा की एज अ मतलब एज अ कानून कोई गाइडलाइन नहीं है कि आपको लैंड ओनर को इतना पैसा देना है तभी आप लैंड के ओनर बने Because in case the Telegram channel which you pointed, Kal Manish wala, in case such a thing can be shared, because this is the biggest question before entering into any deal with anybody. नहीं भाई वो बिगेस्ट क्वेश्चन का तो बड़ा सिंपल सा जवाब है आज की तारीख में The checklist, basically. जितनी भी रेरा की वो है गाइडलाइंस हैं और जो रेरा के डॉक्यूमेंट्स हैं एटलीस्ट इन गुड़गांव आई हैव नो आइडिया अबाउट पंजाब बिकॉज मैंने पंजाब में डील नहीं किया आज तक और बट गुड़गांव में आपको रेरा के साइट से बिल्डर ने जो भी डिक्लेरेशंस करी हैं वो सब आप डाउनलोड कर सकते हो अच्छा, okay. विदाउट एनी कॉस्ट इट इज अवेलेबल फ्री Okay, okay. ये गुड़गांव का तो मुझे पता है तो आई एम श्योर वहां भी तो फिर आप उसको जब डाउनलोड करोगे और उस डॉक्यूमेंट को पढ़ोगे तो आपको Okay. पता लग जाएगा कि ये कहानी कहाँ पर गड़बड़ हो रखी है नहीं, बिकॉज क्या होता है ना कि रेरा वाला एंगल तो तब आता है जब वो दे हैव अप्लाइड फॉर दैट थिंग ना, उसके पहले ही प्री लॉन्च ऑफर्स शुरू हो जाते हैं. भाई मत खरीदो ना फिर अगर ऐसा है प्री लॉन्च अंडरस्टूड. नहीं तो प्री, बिकॉज क्या ना, यू अप्रिशिएट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो. नहीं ये यहाँ पे अभी इसी पॉइंट को मैंने थोड़ी देर पहले कवर किया था. ओके, ये एक सोच है. सबसे ज्यादा नुकसान लोगों को आईपीओ में था. इफ यू आर अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर कि मैंने प्री लॉन्च में लगाया 10-20% लेकर के कमा के निकल रहे हैं तो अलग बात है. ओके. अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि प्री लॉन्च में ही फायदा होता है और आप जब पैसे फंस गए तो आप ज्यादा नुकसान में नहीं आगे. अंडरस्टूड, डन. और इसमें भी अगर डिटेल में जाएंगे तो हो सकता है कि सिचुएशन उतनी खराब ना हो जितना लग रहा है. बिकॉज अभी तो होता है जब डिटेल मतलब पैनिक बहुत बड़ी चीज है. वो ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया तो भाई उसमें 1000 आदमी थे. नॉट नेसेसरी ऑल 1000 हैव डाइड ना. बट रात को तो न्यूज आती है ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया. यस. सो उसमें 1000 के 1000 जो पैसेंजर्स हैं उनके घर वाले जो हैं वो फोन करने लग जाते हैं बिकॉज दे अज्यूम दैट एवरीवन इज डाइड. सो लेट द डस्ट सेटल. हो सकता है कि इतना बड़ा चैलेंज ना हो जितना दिख रहा है. अंडरस्टूड. ओके, थैंक यू वेरी मच. Okay, so Atul, your doubt is clear now? Yeah, very much. Thank you. Okay. And once I'll go through this checklist further in case any Yeah, doubts. sure. We will. ये दिस इज द लिंक ना. ये जो आप HTTP ये वाला है. अच्छा ओके. Okay. ये चैट में इन्होंने लिंक दिया है फॉर Yeah, the link is given there. Telegram channel. Understood. Yeah. Got it. Thank you very much. बताएं सर. और मिस्टर शिवेन दास हैज आस्क्ड द क्वेश्चन अबाउट व्हाट इज द ROI. आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड दैट. व्हाट इज the property is an investment. What should be a sane expectation ROI on an average in a good residential property? Sir, in a growing economy, I would say it would be a safe assumption to say कि ढंग से किया हुआ इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में आपको लॉन्ग टर्म में 12% के आसपास का CAGR देना चाहिए, which actually speaking because it's a leverage investment is a very high ROI. कितना बताया? 10 से 12%. 12% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, जिसमें कि सर अगर आपने 80% का लोन ले रखा है जो आपको एवरेज 7% के ब्याज पे मिल रहा है तो आप दूसरे के पैसे पर 5% का ब्याज कमाओगे. Okay. बट फॉर दिस वन नीड्स टू पुट इन अ लॉट ऑफ वर्क. मतलब इट जस्ट डजंट हैपन लाइक दैट. And तो रियल एस्टेट ना दुधारी तलवार है. इधर पड़ गई तो आप कट जाओगे, उधर पड़ गई तो फायदा हो जाएगा.
विपुल वो हम तो उसी तरफ की धारी में कट रहे हैं हमेशा, तो इसीलिए आई थॉट कि दिस सर वेबिनार मैं नहीं बोलूंगा इस पे। राइट. So there are no more questions. I believe I have not seen. Okay, so Sir. people can ask these questions on WhatsApp group also, and all through Telegram channel also. And I will just summarize. Before that, we would also like to tell you about our next webinar, which is on mutual funds. Gentlemen, it is Jayesh. Can you please flash it? What's your WhatsApp number, sir? I will share it on the. अच्छा यहाँ इसमें है ये 93113. Right, that same one. 93113 Yeah. 9311393676. That is the WhatsApp number. You can send in your queries on that with your. Please also share your name and email ID. Else we would not know whom to respond to or whom are we talking to. So this is the next webinar. This is the next webinar. It is with the Mr. Jiten Choudhary, who is an expert on mutual funds. He's a BCom Honors MBA Finance SEBI registered investment advisor and AMFI certified, RDA registered, NSE. I mean, he has got all the qualification and he has been in the industry for 17 plus years. And this is another webinar which is going to be very, very useful. I'm sure a lot of people must have invested money in mutual funds and have burned their fingers. Don't know what kind of mutual funds one should know. What is the fees they are charging? What is the asset under control they have? All those things. So please do join, ladies and gentlemen, that webinar also. The link to this webinar will also be shared and it will also be there on the Telegram channel. Let me conclude today's session. Thank you, Vipul. You have been very candid and largely honest in your response. Some questions I think you did manage to duck. But I mean, you brought out the do's and don'ts of buying a home quite well, and also gracious enough to share the checklist in the Telegram channel. I'll do that, sir. Give me a couple of days. एक दो दिन लगेंगे मैं उसको. Yeah, I'm sure it will be helpful to our audience. Should anyone have any more questions for Vipul now or later, the WhatsApp number is shared and is flashed on the screen. It's there in the invite also. Please leave your name and email in the query. Also, if you want, you can join the Telegram channel. I'm reiterating again because I know what we are into, and we are going to make this Telegram channel a must to join for everyone who doesn't want to lose money in financial deals. Lastly, thank you everyone for sparing your valuable time. May you all be on the path to financial freedom, and I wish that Value Talk plays a very positive role in achieving your goal of financial freedom. With this, I, Manish Kochhar, now would like to sign off. Thank you, Vipul. Thank you, sir. It was pleasure having you here. And thank you, everyone. Shubhratri, Shabakher. Good night. Right, sir. Till we meet again. Right, sir. Bye-bye, sir.